Okay, so in the continuation of the testing strategy, the first testing strategy that we have discussed yesterday, that was the black box testing. So in black box testing, we discussed two kinds of testing approach: the boundary value analysis as well as the equivalence class partitioning. So the next category of the testing is the white box testing. So we will cover today what is the different types of the white box testing we can perform on the system. So as we already discussed, the white box testing is the type of the structural testing where the code is tested. So for the black box testing is only basically test the system as we provide the input and we check the output, whereas in the white box testing we try to find the problems where the problem is there in the code. That's why this is called the structural testing. So these are the type of the white box testing that we are going to discuss today. So the first is the statement coverage. So statement coverage, what is the basically you can say that the intention behind this statement coverage is that the code, each code is having many number of statements, and if we run any test cases, we run the program using some test cases. Definitely, if some of the statements are skipped or some of the statements are not executed or not covered by that particular test case, then we cannot say that the statement which are skipped does not have any problem. So the intention of this kind of testing is that the each statement need to be executed at once, at least one, so that if there is some problems, then it may give you the idea ki, so you can say that that statement is not having any problem or having some problem, so you can do something. If there is a problem, then you can do something to rectify or do something to fix the problem in that particular statement. So this is called the statement coverage. तो जितने भी आपके statement होंगे किसी भी code में, every statement should be covered and by the test case. So this is the kind of the test statement coverage testing. The limitation of this statement coverage is that, suppose that if you have if you use this type of approach for performing the test on a particular program, then definitely you will use a certain input value, and तो आपके कोई ना कोई एक टेस्ट केस आप इस प्रोग्राम पे आप रन करेंगे. So in that case, test case जो अभी आपने input दिया, that input will be in that way कि each statement in that particular code should be executed at least once. So आपने जो input दिया है उसके लिए वो आपका execute हो गया. So every statement is executed and you will find the correct output. ठीक है, आप तो लास्ट में आपको सबसे लास्ट में the code is generated the correct output. So it doesn't indicate that कि आपका वो प्रोग्राम पूरा सही है. इट ओनली इंडिकेट दैट कि अगर आपने ये वाला इनपुट दिया तो इस इनपुट के लिए जो आपके जितने भी स्टेटमेंट थे, all the statements are covered, and for this input the program is correct. Clear? So this is you can say that the limitation and of this statement coverage. And remember, it need to be executed. जब आप इसको execute करेंगे तो जो भी आपने कोड लिखा है, ठीक है, सॉरी, जो भी आपने टेस्ट केस यूज किया है, तो टेस्ट केस शुड हैव टू एग्जीक्यूट ऑन ऑल द स्टेटमेंट्स दोज आर देयर इन द कोड. ठीक है. So for a smaller program, it is easy to find the input value, which will, when we pass that value into the program, then each statement in that program will be executed. But if we have a very large program or the large set of statements are there in the program, then the test case will to identify the test case, it is a typical task. Okay. So the principle the statement coverage methodology design test cases so that every statement in the program is executed at least once. Unless a statement is executed, we have no way to knowing if an error exists in that statement. तो जब तक आप statement को execute नहीं करेंगे, you will not be able to say that whether that statement is having problem or not. Okay. So that is the motive of this statement coverage. Statement coverage criteria
observing that statement behaves properly for one input value, ठीक है, no guarantee that it will behave correctly for all input value. तो जो वही मैंने आपको बताया कि suppose that if you execute that program with certain test cases, तो जो आपने इनपुट दिया है इसमें जो भी आपकी इनपुट वैल्यू होंगी, ठीक है, उसके साथ आपने आउटपुट जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको आपने आइडेंटिफाई किया. सो इफ इट इज if the program is providing the correct output for this input value, so it doesn't indicate that for the other values also the program will behave correctly, ठीक है. It is only guaranteeing for this input, ठीक है. Now so this is an example of how we can find how we can write the test cases for this using the स्टेटमेंट कवरेज. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कवरेज के लिए कौन कौन से आपके स्टेटमेंट है. सो बेसिकली देयर आर 6 स्टेटमेंट. सो वी हैव टू फाइंड द value, input value, which when we input the value into this program, the each statement should be executed, ठीक है. तो आपका जो हम एक टेस्ट केस बनाएंगे, टेस्ट केस में क्या क्या वैल्यू होना चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस. So if we provide this should be executed, ठीक है. तो whatever value we are giving, that definitely this will be executed, and when we give the value it should be passed to this statement. जो भी आप वैल्यू देंगे यहाँ पर, ठीक है, वो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये भी. सो व्हाटएवर स्टेटमेंट्स आर देयर, ऑल द स्टेटमेंट शुड बी कवर्ड बाय द इनपुट साइड, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी जैसे 3 and 4 and 3, these two sets are given. ये आपकी this is the you can see that this is the test shoot where the 2 test cases are there. That these 2 test cases need to be run on this program so that it will be it will cover all the statement. तो अगर हम 4 and 3 देते हैं and 3 and 4 देते हैं, so definitely you can see कि इसमें आपके इन दोनों जो ये 2 टेस्ट केस अगर हम इस पे रन करते हैं, so the each statement will be covered. So you can see that this is the feasible test cases for this program, ठीक है. So all statements are executed at least one. तो अगर हमने एक बार इसकी वैल्यू ज्यादा दे दी, इसकी स्मॉलर वैल्यू दे दी, दूसरी बार में हमने इसकी वैल्यू स्मॉलर दे दी, इसकी लार्जर वैल्यू, सो you can see कि all the statement will be executed by these 2 test cases. So you can say that this is the sufficient test suite which will which will give you the statement coverage, ठीक है. स्टेटमेंट कवरेज के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. Now the next is the branch coverage. Branch coverage is what? The test cases are designed such that the different branch conditions is given true and false values in turn. So you can say that this is the more superior type of approach, testing approach than the statement coverage. Statement coverage में हम क्या देखते हैं कि ये जो आपकी ये जो है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक आपने जो 2 टेस्ट केसेस बनाए, वो क्या बनाए, 3 and 4 and 4 and 3, ठीक है. ये 2 टेस्ट केस आपने इसमें बनाए. नाउ दीज 2 टेस्ट केसेस आर व्हाट, कि आपके ब्रांच कवरेज का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ब्रांच दिस ब्रांच कवरेज में क्या हुआ कि आप जब इसको एग्जीक्यूट करें, सो इन दिस केस द कंडीशन शुड बी फॉल्स, ठीक है. कंडीशन शुड बी फॉल्स एज वेल एज द कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है. तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें वो वैल्यू दे रहे हैं जिससे कि आपकी कंडीशन ट्रू हो, तभी आपके एग्जीक्यूट होंगे. बट इन द ब्रांच कवरेज द every conditional statement must be provided a value for the true as well as for the false, ठीक है. So that's why you can say that कि जो अगर आपने कोई भी ब्रांच कवरेज की जो टेस्ट सूट बनाई होगी, that will be sufficient to perform the statement coverage, whereas if you design the test suite for the statement coverage, it is not guaranteed that कि आपका जो ब्रांच कवरेज है वो भी कवर हो जाएगा. लेकिन आपने ब्रांच कवरेज अगर आपने कर लिया, सो यू कैन से दैट कि स्टेटमेंट कवरेज, नो नीड टू परफॉर्म द स्टेटमेंट कवरेज ऑन दैट पर्टिकुलर कोड, बिकॉज जो आपने ब्रांच कवरेज किया उससे आपकी स्टेटमेंट कवरेज भी कवर हो गई, ठीक है. सो दिस इज द ब्रांच कवरेज. सो द डिफरेंट ब्रांच कंडीशन इज गिवन ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज इन turn. So the branch testing guarantees the statement coverage. Is stronger testing compared to the statement coverage based
टेस्टिंग। तो स्टेटमेंट कवरेज से बेटर है ये आपका, ठीक है। इफ यू परफॉर्म दिस ब्रांच कवरेज then no need to perform the statement coverage. It guaranteed that कि आपका जो statement coverage है already covered हो गया, ठीक है। So this is you can see that कि we have to provide the value which will be false as well। जो आपका while statement है उसके लिए आपकी false होना चाहिए। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि इससे आपकी if और if वाली जो कंडीशन तो आपकी ट्रू हो रही थी और फॉल्स भी हो रही थी, लेकिन ये while वाली जो कंडीशन है इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉल्स। तो जितने भी आपके स्टेटमेंट है उसमें आपकी वो वैल्यूज फॉल्स भी होना चाहिए और ट्रू भी होना चाहिए। सो इन टर्म्स the conditional statement should be provided the true value as well as the false values। so that is the branch coverage। तो इसमें ये और हमने टेस्ट केस ऐड कर दिया। सो दिस इज द sufficient test suite for explaining the branch coverage on that particular code, ठीक है। Now the condition coverage is what the test cases are designed such that each component of a composite conditional expression given both true and false value। so now it is again the superior of the branch coverage। तो ब्रांच कवरेज में अगर आप ब्रांच कवरेज में केवल तब हम यूज करते हैं जब हमारी ब्रांच कवरेज को हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज ए नो कंपोजिट कंडीशनल स्टेटमेंट। कंपोजिट कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर व्हाट, जहां पर आपकी एक से ज्यादा कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट में ही एक से ज्यादा कंडीशन होती है। इन दैट केस you have to consider the conditional coverage। तो conditional coverage is again the superior of the branch coverage, ठीक है। जो आपकी conditional coverage है उसमें आपके जितने भी composite statements होते हैं, composite conditional statement होते हैं, they need to be covered and for all the conditions which whatever conditions are there they should be provided the true as well as the false value, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे दिस इज व्हाट द C1 C2 C3 दीज आर द कंडीशंस इन दिस। सो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपोजिट कंडीशन है आपकी। तो इन कंपोजिट कंडीशन में आपकी C1 C2 C3 इन सभी के लिए आपको एटलीस्ट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू सारे कॉम्बिनेशंस के लिए यू हैव टू प्रोवाइड। सो दिस इज द you can say that the conditional coverage। so it is the type of the branch coverage but it is having it is used for providing the composite type of statement where the composite conditional statements are there, ठीक है। so branch testing is the simplest condition testing strategy। compound conditions appearing in a different branch statement are given true and false values, ठीक है। condition testing stronger testing than the branch testing is stronger than the statement coverage टेस्टिंग। तो आपने देखा कि कंडीशन टेस्टिंग आपकी ब्रांच टेस्टिंग जो होती है उससे स्ट्रॉन्गर होती है एंड जो आपकी जो ब्रांच टेस्टिंग है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेटमेंट टेस्टिंग, ठीक है। तो ब्रांच टेस्टिंग में आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट कंडीशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है, वेयर इज कंपाउंड कंडीशन अपीयरिंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस आर गिवन ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज इन द कंडीशन कवरेज, ठीक है। So the condition coverage are the Boolean expression having a components। for condition coverage we required 2 to the power n test cases, ठीक है। तो जितनी आपकी कंडीशंस होंगी कंडीशन कवरेज में क्या होगा कि जितने भी स्टेटमेंट होंगे you need to have the test cases equal to the 2 to the power n if n is the number of components those are there in the expression, ठीक है। तो अगर आपके 3 कंपोनेंट हैं तो आपको 8 टेस्ट केसेस यू नीड टू बी क्रिएट, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए आपकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपके 4 कंपोनेंट्स हैं सो यू नीड टू हैव 16 कंपोनेंट। तो जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उतने ज़्यादा आपकी आप ये कह सकते हो कि उसमें आपकी उतने टेस्ट केसेस लगेंगे। सो प्रैक्टिकल ओनली इफ द n इज स्मॉल। तो जब आपके n की वैल्यू कम होगी ओनली देन यू कैन यूज दिस कंडीशन कवरेज, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस कंडीशन कवरेज। इफ यू हैव a very less number of n or the expression components then you can use the condition coverage। if you have the larger number of these components then you can go for the branch or the statement coverage। Now the next and very important is the path coverage। so path coverage is what design test cases such that all linearly independent path in the program are executed at least once। तो आपके कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हैं these all independent path need to be executed at least one, that is called the path coverage। तो path coverage का मतलब यही है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट पाथ हैं उस
किसी एक प्रोग्राम में, तो वो सारे आपके पाथ को एक एटलीस्ट एक बार आपको एग्जीक्यूट कराना है जो भी टेस्ट केस आप बना रहे हैं, ठीक है। सो द कंट्रोल फ्लो ग्राफ नीड टू बी, this is the another concept which is used in this path coverage. So the control flow graph is what? The control flow graph is the approach by which we have to identify the independent path. तो CFG हम जब बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए CFG बनाते हैं, CFG से क्या होता है, देन वी कैन फाइंड कि आपका जो इंडिपेंडेंट पाथ क्या है, उसके लिए साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी हम निकालते हैं. So we are going to discuss that. So the path coverage, we only need to find that each independent path need to be executed at least one in that particular program. So that is called the path coverage. So the CFG is what? A control flow graph describe the sequence in which the different instruction of a program get executed. So the CFG only indicate you कि जो भी आपके स्टेटमेंट है, what are the sequence of executing these statement will be explained by this CFG. The way control flows through the program is explained by this CFG, ठीक है. तो हम देखते हैं how to draw the control flow graph. The number all the statement of a program, numbered statement represent nodes of the control flow graph. तो सबसे पहले जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट को हमें एक एक नंबर प्रोवाइड करना है. Then we represent that statement by their number on the CFG, ठीक है. तो उस जो नंबर से हम उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that is called basically the node in the CFG, ठीक है. And as from one node to another node exists if the execution of the statement representing the first node can result in transfer of the control to the other node. तो आप वही जितने आपके स्टेटमेंट है, if suppose that there is a statement number 1, ठीक है, उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और स्टेटमेंट 1 से अगर सपोज दैट वी आर गोइंग टू स्टेटमेंट नंबर 5, ठीक है, सो वी हैव टू शो दैट कि ये आपका 5 है, इस 5 पे हम जा रहे हैं, वी आर जंपिंग टू दिस 5, तो ये आपका यहाँ पर आ गया. अब अगर ये कोई कंडीशनल है तो हम 5 पे भी जा सकते हैं, या हम यहाँ पे 4 पे भी जा सकते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट. So this 1 and 4 and 5, what are these? These are the statement number. जो आपने एक प्रोग्राम लिखा होगा उसमें स्टेटमेंट होंगे, so you just provide the number to each statement 1 2 3 4 5 6. In this way you have to provide the number to the each statement to that particular program, ठीक है. तो उसमें हम CFG कैसे बनाते हैं कि ये जो नंबर है, इन नंबर्स को हम नोड बताते हैं, और जो हमारा फ्लो होता है, कंट्रोल फ्लो होता है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में, that basically represented by the age. So this is the directed age, or you can say that the CFG is the directed graph, ठीक है. So if the execution of the statement representing the first node can result in the transfer of control to the another node, that will be indicated by this age. So this is an example of the program which we have used to find the greatest common divisor in this. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका एक फंक्शन है, तो हम इसको अभी नंबर नहीं दे रहे हैं. सपोज दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द नंबर. इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस नंबर, देन डेफिनेटली इन व्हेनेवर दिस प्रोग्राम इज रनिंग, दिस नंबर विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है. सो वी आर कंसीडरिंग हियर, आप इसको भी नंबर दे सकते हैं. तो वी आप ये क्या होगा कि आपका बेसिकली जाएगा तो ऐसे, सो वी कैन प्रोवाइड दिस नंबर, बट हियर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, एंड दिस इज द सिक्स्थ स्टेटमेंट. ये आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है. नाउ so the first statement, you can see after executing the first statement, you will go to the either to the this statement. If the condition is true, if this condition is true, then you will go to the second statement. Otherwise, if the condition is false, then you will go to the सिक्स्थ स्टेटमेंट. तो आपने देखा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पे जा रहे हैं या फिर हम डायरेक्टली 6 पे जा रहे हैं. सो 6 इज व्हाट द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस कोड, ठीक है. तो हम या तो 2 पे जा रहे हैं 1 से, या फिर हम 6 पे जा रहे हैं. देन इफ वी कम टू द 2, देन इट इज अगेन कंडीशनल, ठीक है. सो इफ इट इज अ कंडीशन इज ट्रू, देन वी विल गो टू द स्टेटमेंट 3, अदरवाइज वी विल गो टू द स्टेटमेंट 4. तो हम देखते हैं कि 2 से या तो हम 3 पे जा रहे हैं या 4 पे जा रहे हैं. सो इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन विल बी गो टू द स्टेटमेंट 3. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन वी विल गो टू द 4, ठीक है. दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस, वी विल कम टू दिस स्टेटमेंट 5, ठीक है.
यहाँ से आप चाहे यहाँ से आओ चाहे यहाँ से, so after this you will come to the statement 5. so again what after the 5 you can not go to the 6. तो हमेशा याद रखना कि जब हम while टाइप के while do while लूप यूज करते हैं तो इसमें कभी भी हम लास्ट स्टेटमेंट से एग्जिट नहीं करते हैं उस लूप से. अगेन वी हैव टू कम टू द लूप स्टेटमेंट. जो हमारा लूप स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वहां पर हम आते हैं, फिर वहां से हम जंप करते हैं. बिकॉज एक्चुअली व्हेनेवर वी कंप्लीट दिस पाथ, एक आपका एक इटरेशन आपका कंप्लीट हुआ इस लूप का, then again you have to come to this loop. So again you check the condition. If the condition is false, then it will go. Otherwise again you go inside the body of this loop. So this is, you can see that this is the CFG of this program. ठीक है, तो ये CFG है. तो ये CFG हम यूज करते हैं किसमें, पाथ कवरेज में. ठीक है, पाथ कवरेज में. सो पाथ थ्रू ए प्रोग्राम, ए नोड एंड एज सीक्वेंस फ्रॉम स्टार्टिंग नोड to a terminal node of a control flow graph. There may be several terminal nodes for a program. तो ये जो है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर हो. कई बार हम रिटर्न कर देते हैं. यहाँ पे भी हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं. सो इट इज नॉट इंडिकेटिंग दैट कि आपका जो टर्मिनेटिंग नोड है वो एक ही होगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम. आप कहाँ पर, यहाँ पर मान के चलो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया तो ये आपका टर्मिनेटिंग प्रोग्राम, टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट हो गया. यहाँ पर हमने लिख दिया तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसमें कितने भी टर्मिनल नोड आप यूज कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. नाउ द इंडिपेंडेंट पाथ, एनी पाथ थ्रू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग एट लीस्ट वन न्यू नोड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर इंडिपेंडेंट पाथ. ठीक है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब होगा कि जो भी हम पाथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार हमने जो पाथ ले लिया, अब द सेकेंड पाथ दैट वी आर कंसीडरिंग, वी हैव टू ऐड द न्यू नोड इनटू दैट पाथ. ठीक है, कोई भी पाथ हम अगर ऐसा ले रहे हैं जिसमें कोई ना कोई एक नया नोड आना चाहिए. सो एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि इसमें सपोज दैट कि वी आर कंसीडरिंग दिस पाथ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन पाथ. ठीक है, जब हम इस पाथ से इसको चेंज कर रहे हैं, दिस इज द अनदर पाथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ आए. ठीक है, एक पाथ ये वाला हो गया. ठीक है, एक पाथ आपका क्या था 1 to 6, एक आपका आ गया 1 to 6. ठीक है, दूसरा हो गया 1 2 4 5 और यहाँ पे आए और यहाँ से आ गए वापस से. तो दूसरा पाथ हो गया 1 2 4 5 1 6. हर बार हम कोई, अब इसमें हम देखते हैं फिर से एक दूसरा, एक और तीसरा पाथ हो सकता है 1 2 3 5. ठीक है, 3 5 और इसके बाद आपका 5 के बाद 1 6. तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 3 पाथ हो गए. देयर आर 3 पाथ. अब सपोज दैट द इटरेशन इज गोइंग ऑन, हम 1 2 4 5 फिर से आ रहा है, फिर 1 2 4 1 2 3 5 1. तो दैट विल बी, ये हमारा ये रिपीट होगा. बट वी हैव टू फाइंड कि हम स्टार्ट से एंड नोड पर कैसे जा रहे हैं. एटलीस्ट वन टर्मिनेटिंग नोड पे हमें जाना है, किसी भी स्टार्ट से, किसी भी उस जो स्टार्टिंग नोड है वहां से स्टार्ट करके टर्मिनेटिंग नोड पे हम कितने पाथ हमारे पास हैं. सो यू कैन सी इन दिस एग्जांपल देयर आर 3 पाथ्स. ठीक है, जो आपके एटलीस्ट एक नया नोड आप देखो, इसमें 1 and 6 इसमें है, 1 and 6 इसमें भी 1 and 6 है, बट 2 4 5 दीज आर द 3 न्यू नोड. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ओनली 3 इज एडेड हियर. तो न्यू नोड इज एडेड हियर. तो किसी भी इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब ये हुआ कि कोई भी नया नोड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर एज ए इंडिपेंडेंट पाथ. एक हमने पाथ बनाया, इस पाथ में और हम दूसरा पाथ क्या हो सकता है जिसमें सेम पाथ नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कि कोई ना कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट कोई दूसरा एक नया नोड उसमें ऐड होना चाहिए. सो दैट विल बी कंसीडर एज ए independent path. Clear? So that is the definition. Now the cyclomatic complexity, it is given by the Maccabees. So the cyclomatic complexity is what? An upper bound for the number of linearly independent path of a program. तो
किसी भी प्रोग्राम में जितने आपके इंडिपेंडेंट पाथ होंगे दैट इज बेसिकली कंसिडर एज ए साइक्लोमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, साइक्लोमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? अपर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ ए प्रोग्राम provides a practical way of determining the maximum number of linearly independent path in the program। तो maximum number कितने होंगे आपके? That will basically indicated by the cyclomatic complexity। तो maximum number of linearly independent path of a program basically called the cyclomatic metric of that program। ठीक है, so there is the way how we can estimate this cyclomatic complexity। So it is the formula which will be used to estimate the cyclomatic complexity। The formula is Vg is equal to, Vg is what the आपका जो CFG आपकी जो ग्राफ आप बनाते हैं उस ग्राफ में हम जो E is what the number of edges in that particular graph। ठीक है, N is the number of nodes in that graph and उसको हम 2 से कर देते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने थे? एक हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने हैं? 1, ये आपका 1 एज हो गया, ये पूरा एक 1 एज है। ठीक है, ये 2 एज हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 एजेस आ गया। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोड्स 6 नोड्स आर देयर। 7 - 6 + 2, सो द आंसर इज 3। तो 3 आपका हो गया। तो 3 हमने इंडिपेंडेंट पाथ भी देखे। सो बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। तो वहां पर जो हमारा फॉर्मूला आया था 7, 6, 2, ये 7 आपके उसमें एजेस थे, 6 आपके नोड्स थे, +2 किया तो आंसर इज 3। तो हमने जो इंडिपेंडेंट पाथ देखे वो भी हमारे 3 ही हैं उसमें। ठीक है, अभी जो हमने निकाल के देखा था 1, 6, फिर आपका एक के बार फॉल्स कंडीशन ली, एक बार ट्रू कंडीशन ली, तो आपका जो इंडिपेंडेंट पाथ है वो आपकी 3 हुआ। ठीक है, नाउ another way of computing cyclomatic complexity determine the number of boundaries areas in the graph any region enclosed by nodes and the edge sequence। तो जो क्लोज्ड एरिया होगा उस आपकी जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ है CFG है, उसमें जितने भी क्लोज्ड एरिया होंगे उसको अगर हम +1 करते हैं तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कितने आपके क्लोज्ड एरिया हैं। आप देखो, एक तो आपका ये क्लोज्ड एरिया है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ये आपका है, ये 1, 6 ये तो क्लोज्ड है नहीं, ये तो दिस इज द ओपन, और दूसरा है आपका ये वाला क्लोज्ड एरिया 1, 5, 5 to 1 ये वाला क्लोज्ड एरिया। सो यू कैन सी कि देयर आर 2 क्लोज्ड रीजन इन दिस CFG। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 1, 2 + 1 याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड एरियाज 1 + 1 किया तो आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज 3 cyclometric complexity। Now the McCabe metric provides a quantitative measure of estimating testing difficulty amenable to automation। Initially number of bounded areas increases with the number of decision nodes and loops। तो जैसे जैसे आपके जो नंबर ऑफ डिसीजन जो आपके नोड्स होंगे या जो आपके लूप यूज करेंगे उससे आपकी जो नंबर ऑफ एरियाज बाउंडेड एरिया है दैट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आप इस मैट्रिक का यूज क्या करते हैं? बेसिकली द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए लोअर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी डिजाइन। तो अगर आपने किसी भी जैसे मैंने बताया कि जब हमने कल डिस्कस किया था कि वी नीड टू डिजाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, वी नीड टू डिजाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम कैसे बता सकते हैं? इट इज नॉट 100% गारंटीड दैट के ओनली ये आप जो मेथड हम बता रहे हैं ये आपको ऑप्टिमल टेस्ट केसेस को बताता है, बट समहाउ द 90% इज करेक्ट। ठीक है, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जो भी आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की आई दैट इज बेसिकली द लोअर बाउंड। और आप कह सकते हो कि दिस यू नीड टू एटलीस्ट डिजाइन दिस नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इफ यू स्किप, अगर आपने इससे ज्यादा आप बना लो दैट्स ओके, बट यू कैन नॉट create the test case number of test cases less than the psychometric complexity of that particular program। ठीक है, otherwise what happen कि you will have a major risk
ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक पोर्शन को ऐसे स्किप कर देंगे, दैट विल नॉट बी टेस्टेड बाय द टेस्ट केसेस व्हिच यू हैव डिजाइन। तो अगर मान के चलो किसी भी प्रोग्राम की साइकोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 4 आई, सो दैट मीन्स कि यू मस्ट डिजाइन एटलीस्ट 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, और 4 टेस्ट केसेस का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी टेस्ट केस आप जब बनाते हैं तो दैट शुड बी आइडेंटिफाई ए वन टाइप ऑफ, दैट मीन्स कि different types of errors should be identified by that टेस्ट केसेस। ये नहीं होना चाहिए कि एक टेस्ट, दो आपने टेस्ट केसेस बनाए, बोथ द टेस्ट केसेस आर एबल टू आइडेंटिफाई द सेम काइंड ऑफ एरर्स, ये नहीं होना चाहिए। एक टेस्ट केस जिस टाइप्स की एरर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, दूसरा टेस्ट केसेस उन एरर्स को कवर नहीं करना चाहिए उसको टेस्ट केस। सो दैट मीन्स दिस इज द साइकोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी टू गारंटी कवरेज ऑफ ऑल लीनियरली independent path. That's why the psychometric complexity is the value by which we can find the minimum number of test cases that we need to design, so that the test cases that we have designed, they will cover all in a linearly independent path of that particular program. So defines the number of independent path in a program, provides a lower bound for the number of test cases for the path coverage, only gives an indication of the minimum number of test cases required. ठीक है, ये मिनिमम नंबर है, इससे कम आपको नहीं बनाना है, इससे ज्यादा आप बनाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, द काइंड ऑफ टेस्टिंग यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, कितनी आपको टेस्टिंग करनी, कितने आपका जो रिलायबिलिटी लेवल आपको कितना रखना है उसमें, उस केसेस पे आप और टेस्ट केसेस को बना सकते हैं, बट इट गिव यू द लोअर बाउंड। हमेशा ये मिनिमम वैल्यूज को बताता है, मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे कम आप टेस्ट केसेस को डिजाइन नहीं करते हैं। सो दिस इज द सीसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सीसी, साइकोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो हाउ यू कैन फाइंड, और कैसे आप बनाते हैं टेस्ट केसेस को। ठीक है, सो द कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम बनाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, और दैट इज आल्सो नोन एज द CFG। Then we have to find this number of nodes, and ये सब आप निकाल सकते हैं। ठीक, then we have to find the linearly independent path। ठीक है, जिसमें आपकी VG, that means कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ आपके एजेस हैं इसमें। ठीक है, then prepare the test cases। ठीक है, so then after that when we find this psychometric complexity, we have to prepare those number of test cases according to this CC value। ठीक है, उतने तो हमें बनाने हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, ये देखो यही है आपके इंडिपेंडेंट पाथ। ठीक है, तो एक बार हमने फॉल्स वैल्यू दी, फॉल्स वैल्यू यहाँ पर हमने फॉल्स वैल्यू दी जिससे कि आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ जंप हुआ। सो इट इज द फर्स्ट पाथ इज एग्जीक्यूटेड बाय दिस टेस्ट केस। ठीक है, कि इसमें जो आपने कंडीशन थी वो आपकी कंडीशन फॉल्स के लिए भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, देन सेकंड टेस्ट केस कि आपका ये है 1 and 2, 1 and 2, सो द कंडीशन इज 2। सो इन दिस केस इफ के लिए आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, इफ के लिए कंडीशन फॉल्स हुई, सो दैट मींस दिस एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पर हमारा जो पाथ कवर हो रहा है वो यहाँ से ये वाला पाथ कवर हो रहा है। दिस पाथ इज कवर्ड बाय दिस टेस्ट केस। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज जब आपकी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, सो दिस इज द पाथ व्हिच इज कवर्ड बाय द थर्ड टेस्ट। ठीक है, पहला आपका डायरेक्ट यहाँ आ गया था, तो दीज आर द 3 पाथ बाय प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू। तो आप इसके लिए टेस्ट सूट आप बना सकते हैं कि आपकी जो टेस्ट सूट बनी कोई 1 1, ये पहला टेस्ट केस। दूसरा टेस्ट केस आपका हो गया 1 and 2, और तीसरा टेस्ट केस हो गया आपका 2 and 1। So this is the test suite for this program, which basically आपने देखा कि number of test cases इसमें कितनी है 3।
तो हमारी जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आई थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि ये 3 टेस्ट केसेस शुड बी देयर which will execute each statement in the program as well as it checks all the conditions for true as well as for false। ठीक है, आपने जितने भी टेस्ट केसेस आपने हमने पहले देखे आपके, चाहे वो आपका ब्रांच कवरेज है, चाहे स्टेटमेंट कवरेज है, तो वो सारे के सारे आपके इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द पाथ कवरेज और पाथ टेस्टिंग। ठीक है, तो ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंडिकेट्स द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। तो जितनी ज्यादा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट मीन्स वी हैव, जो आपका प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज्यादा है तो हमें टेस्ट केसेस ज्यादा बनाने पड़ेंगे, टेस्ट केसेस ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि द प्रोग्राम इज कॉम्प्लेक्स। और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रही है दैट मीन्स कि उसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ हैं, दीज इंडिपेंडेंट पाथ आर लार्ज। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पाथ हैं। ठीक है, और अगर आप क्लोज्ड रीजन की बात करते हैं तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आने का इंडिकेशन ये भी है कि आपकी जो क्लोज्ड लूप है दे आर वेरी लार्ज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इंडिकेट द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितना आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी इट विल बी यू कैन से दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट प्रोग्राम इज हाई। For maintenance perspectives, limit psychometric complexity of modules to some reasonable value. And good software development organizations restrict psychometric complexity of function to a maximum of 10 also। तो ये आपका ये भी है कि जितनी आपकी कम कॉम्प्लेक्सिटी साइकोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना आपका मेंटेनेंस इजी होगा। ठीक है, so that is the logic. Now the next is the mutation testing. So let me complete this. So I will provide you all these slides and also upload a assignment into the classroom. So you need to just write the definition of the testing. Those are there in the remaining slide, like mutation testing. Okay, mutation testing is simply you create the mutant of the program। आप program में कुछ changes करते हैं, then you test the program with the same test suite। जो आपने एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम को आपने क्या किया, एक टेस्ट शूट क्रिएट की। नाउ द टेस्ट शूट आपने जो क्रिएट की, अब क्या करोगे, आप उस प्रोग्राम में चेंज करोगे। सो दैट मीन्स कि आपने उस प्रोग्राम का म्यूटेंट बनाया और उसी टेस्ट केस से आपने उसको एग्जीक्यूट करा। सो बेसिकली म्यूटेशन टेस्टिंग इज व्हाट द म्यूटेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट सूट। जो आपने टेस्ट शूट आपने बनाई है उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए म्यूटेशन टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन टेस्टिंग का मतलब यही है कि ये इट इज नॉट बेसिकली यूज टू जो आपका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते। दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू फाइंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्टिंग स्ट्रेटजी और द स्ट्रेटजी बाय व्हिच यू क्रिएट द टेस्ट केसेस। ठीक है, तो उन टेस्ट केसेस की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए आपने दो स्ट्रेटजी यूज की। ठीक है, दोनों स्ट्रेटजी को यूज करके आपने टेस्ट केसेस बनाए। ठीक है, तो दो सूट आपके पास आ गए, एक फर्स्ट स्ट्रेटजी से, दूसरी सेकंड स्ट्रेटजी से। ठीक है, नाउ सपोज दैट इफ यू वांट टू सेलेक्ट कि which strategy is having more effectiveness। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यू हैव टू परफॉर्म म्यूटेशन टेस्टिंग। तो म्यूटेंट आप बनाएंगे और दोनों को टेस्ट करेंगे, जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा म्यूटेंट किल हो जाएंगे, दैट विल यू कैन से दैट कि जिसकी ये म्यूटेंट वैल्यू कम आएगी दैट विल बी द मोर इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंटीग्रेशन के टाइम पे हम परफॉर्म करते हैं। सो यू आल्सो नीड टू, ये सारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पढ़ना है। बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फेज्ड वर्सेस इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग जो हमारा फाइनल होता है जिसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। तो वैलिडेशन टेस्टिंग हमारी यहाँ पर हमारी 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड एक्सेप्टेंस। तो अल्फा मतलब कि वही आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही होती है, लेकिन दिस इज परफॉर्म्ड बाय द customer at the developer side, whereas beta is what we provide the application to the customer will perform the testing at their own side।
ठीक है ना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपका जो फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। सो ये आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, स्ट्रेस टेस्टिंग, performance testing, volume testing, configuration. So all you need to write a small note on brief note on all these testing, and you have to submit the assignment, because I have not given any assignment